Greetings to all students, Ashutosh who is with us today and Ashutosh's father who is with us. To this forum, I welcome one of the DDA diamonds whose journey started with the written examination of NDA course at DDA, and today the journey comes to an end with he waiting for his call letter to join one of the most prestigious academy, National Defence Academy Khadakwasla, to be part of the armed forces. It's a journey that speaks a lot about his determination and effort, and today is one of the days when he had the time and we had the opportunity and privilege to get him here on the forum and address other aspirants who are sitting with us today as to how to go about preparing for SSB, and in his attempts that he had made in the SSB for his selection, what are his views if he sees from the point of view of a student. So it will be very authentic feedback that he will be giving you and certain tips for all the aspirants that are sitting here. With that, I welcome Ashutosh, who has been recommended for National Defence Academy 153rd course. Thank you, sir. Welcome, Ashutosh. Thank you, sir. The mic and podium is with you and the audience is in front of you. You can start. So, hello everyone. Ashutosh Sharma this side from Hasanpur district, Amroha and Uttar Pradesh. Recently got recommended from 24 SSB Bangalore 4 NDA 153 course. This was my last attempt. Overall, I gave a total of 8 SSBs, and in my first SSB I was conference out, then screen out, then again conference out, then again screen outs, and in the last I got my recommendation. And I was a part of Doon Defence Academy since May 2022. From here I took 4 months offline coaching for NDA written, and then took a 14 days SSB course. After that, if I told you what I have learnt here, so actually I learned 2 things here. The first thing which I learned, that service selection board is just there to select you. They are not there to reject you. If you are getting your rejection, so it is your mistake. They are just there to select you. And the second thing is, if you want to be an officer in Indian Armed Forces, so the first thing is you should be a perfect man, a perfect woman. If you are a perfect man, if you are a perfect woman, if you have a helping kind of a nature, kind-hearted, if you have a good kind of a confidence, motivation, inspiration, so yeah, you are definitely become a part of Indian Defence Forces in future. And remember one thing, SSB is not just that you can't give kind of a guarantee that you must be get recommended in your first attempt, in your second attempt. It's a very long journey, and the only thing which I learned, that it's my 2 years journey, and the one thing which motivates me, it was my source of motivation. If your source of motivation is really good, if you are very dedicated towards Indian Armed Forces, if you have learned something, so definitely you are getting in it. And besides it, I want to say one thing, that I always say to every aspirant which I have meet here, that is just chill raho, mast raho, aur haste raho, theek hai? The liveliness factor, it should be in very deep in you, okay? Be livelihood, and whatever the things, be original, okay? If you are not original, if you are just lying the things, so actually they have a lot of experience, right? They can get easily in you what are you and what things you are hiding, okay? If you are a leader, so when you speak the first word in your group, so definitely the GTO sir will definitely see you that yeah, he has something, he has some kind of a caliber. In the same case, if you have a something, if your hobbies, your interest, your academics are too good, so yeah, interviewing officer are definitely happy with you. And once you see the things, once you get prepared very well, once you took the guidance very well, so the other group members also see you as a leader, because in the future you want to be that kind of a person who leads a unit of 100 to 120 persons, the lives of 100 to 120 persons in your hand. So they expect something which you say OLQs, okay? If you don't have, so why they are giving the life of soldiers to you? For that you must be have something in you. You should have a patience level. If you have not, so just develop it, and first be a simple person, first be a generous in it, okay? If you see that you are good, so everything is good. So
we see that be positive. If positivity comes from your inside, if you are negative from inside, so there is no logic behind it. Okay, so just be confident, and the confidence comes from reading the books, from talking to people. Be extrovert and just travel the world and meet a lot of people. If you are doing it, so yeah, definitely the great news will be come from you. So this is from my side. Thank you. Well done. Thank you. How did you keep yourself in that flow कि नहीं मुझे एनडीए जाना है तो जाना है? Your source of motivation, like मेरा source of motivation ये था कि जब How did you enhance yourself कि कुछ रूटीन फॉलो करा होगा, किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम दिया होगा, तो कोई पर्टिकुलर बांधा था क्या कुछ रूटीन? जब आप स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट होते हो ना, तो आपको खुद ही पता लग जाता है कि आपने कहाँ पर लैग किया है. अगर हमें like you have so actually एक दो points you want to share regarding that? देखो, अगर आप स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हो तो उससे डेली रूटीन का मतलब मैचिंग हो सकती है, बट उस लेवल पर नहीं हो सकती. अगर आप स्क्रीन आउट हुए हो तो समवेयर आपने कहीं कुछ ऐसा ब्लेंडर किया है जो आपको नहीं करना था. अगर आप उसको पहचान पा रहे हो तो देन उस पर वर्क करो. अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो ये सोचने वाली थोड़ी बात है. और इसके अलावा अगर आप मतलब डिफेंस फोर्सेस इज ऑल अबाउट फेलियर. ठीक है, आप कभी उसमें कोई सक्सेस नहीं दे सकते, बट बस आप उसमें केवल अपने आप को एनहांस कर सकते हो. अगर आप डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर रहे हो एज टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, सो नो, आपको जगह जगह पर फेलियर मिलेंगे. और अगर आप इन्हीं चीज़ों में थक गए तो देन आगे फिर वही बात आती है कि आपको एक पर्सन को लीड करना है, और एक लीडर कभी थकता नहीं है. अगर आप थक रहे हो तो देन थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. एक्सपीरियंस शेयर हो गया आपका? यस सर. आपके सामने है, कितना रैंक है? 1 to 8. 1 to 8 इज़ वेरी गुड रैंक ऑल इंडिया में, राइट? तो एक्सपीरियंस ने आपको बता ही दिया है. हमारा एक ट्रेडिशन होता है, जब भी बैच पास आउट होता है एसएसबी का, तो हम उनको एक प्लास्टिक का फूल देते हैं, है ना? और मैं ये कहता हूँ कि जब रिकमेंड होके वापस आओ और मेरिट लिस्ट में आओ तो वो फूल वापस कर देना, हम आपको बुके देंगे. आई थिंक वो फूल लाया तुम? यस सर. ला वापस कर मेरा फूल. ये फ्लावर मैंने इसको दिया था जब ये एसएसबी, जैसे आप लोग अभी हैं, जब आप पास आउट होंगे तो बेस्ट विशेस के रूप में एक ये देता हूँ मैं सबको. ये मैंने आपको दिया था. कितने कब दिया होगा सर? अक्टूबर 2022. अक्टूबर 2022. यस सर. 2 साल बाद. तो ये लो आपको सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट में आने पे ये. वेल डन. यस सर. बहुत बढ़िया. यस सर. गुड. भाई साहब आप आएंगे 1 मिनट? आपको दिवाली का जो आपकी ज़िंदगी की जितनी भी दिवालियाँ बीती है ना, ये सबसे बेस्ट गिफ्ट मिला आपको दिवाली पे. आपका लड़का है नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने जा रहा है. आई डोंट थिंक सो इससे बड़ा गिफ्ट आपके लिए कोई हो सकता है ना? खुश हैं आप? बहुत बहुत मुबारक है. और जैसा कि हमारा ट्रेडिशन है, जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है उसको 10,000 का कैश अवार्ड यहाँ से मिलता है. तो आपके फादर भी है, तो आज ये अवार्ड आपके बिहाफ पे आपके फादर को दिया जाएगा. कोई ऑब्जेक्शन? नो सर. लीजिए भाई साहब, आप दोनों आइए, ये लीजिए. बहुत सारे स्टूडेंट आपने भेजे यहाँ पे, आपके कहाँ से आए और मैक्सिमम सभी सेलेक्ट हुए. कुछ कहेंगे आप? ये वो एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन. मैं आशुतोष का फादर मंगल सेन शर्मा, एडवोकेट मेरा नाम है, और मैं अमरोहा डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है उसका मैं निवासी. मैं तो ये कहना चाहूँगा बच्चों, आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों की मेहनत और लगन, आप लोगों की मेहनत और लगन पर डिपेंड करता है कि डीडीए जो आपकी एकेडमी है, इसको आपको अपनी मेहनत के, अपनी लगन से इसको 4 चांद लगाने हैं. मैंने जितने बच्चे भी यहाँ भेजे हैं, मैक्सिमम सब लोग यहाँ अच्छी शिक्षा पाकर, और वो बच्चे जो हैं आज अपने अपने पोजीशन में हर जगह फिट हैं. तो मैं तो आप लोगों से इतना चाहूँगा कि आप लोग इतनी मेहनत करें. ये बच्चा आपको बता रहा था अभी, ये हर बार कभी मतलब उसमें
स्क्रीनिंग में आउट हो गया, कभी कॉन्फ्रेंस में आउट हो गया, लेकिन इसने अपना तोड़ा नहीं। देखिए आपके बाहर एक सर ने एक स्लोगन लिख रखा है, आपने साथ पढ़ा हो उसको, कि आपके हारने का इंतज़ार तो और लोग भी कर रहे हैं, आपको केवल जीतना है। अपना मन बना लीजिए कि मुझको जीतना है, मुझको निकालना। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मतलब पेपर कितने बच्चों ने दिया, इंटरव्यू में कितने बच्चे आ रहे हैं, मेरी एक सीट पक्की है, मुझे अपनी एक सीट लेनी है। ये अपना आप जब एम बना लेंगे, उद्देश्य बना लेंगे, तो ईश्वर आपको जरूर सफलता देगा। धन्यवाद। थैंक यू। मैंने भी तुमको बोला, एक्चुअली क्या होता है, अभी मेरिट लिस्ट आई है, रैंक आ गया, सब कुछ आ गया, मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ आगे के लिए, और तुम भी ध्यान से सुनना। मैंने हालांकि तुमको बताया है। सर अभी ज्वाइनिंग लेटर आएगा समवेयर दिसंबर में, राइट? कोर्स स्टार्ट होगा जैन में, है ना? यस सर। तो आपके पास जो ये आने वाले 2 महीने हैं ना, इसमें क्या होता है, टेम्पटेशन होता है। टेम्पटेशन क्या होता है कि बहुत मेहनत कर ली, बहुत पढ़ाई कर ली, सिलेक्शन हो गया, आप 2 महीने करेंगे मस्ती, रिलैक्स, राइट? और इस दौरान मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो चोट खा लेते हैं, लाइक बाइक से या कहीं इधर उधर घूमने में फिरने में, है ना, किसी ऐसे केस में। तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। 2 महीने बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ रहना है। यस, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना है, नहीं तो वेट बढ़ जाएगा, ठीक है? फिजिकल ट्रेनिंग करनी है आपको, जो भी आपके पास टाइमिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग, सो दैट एंड्योरेंस पावर आपकी बढ़े, सो दैट आपको वहाँ पे डिफिकल्टी ना हो ट्रेनिंग में। एनडीए ट्रेनिंग इज नॉट इट्स वेरी टफ ट्रेनिंग, पता ही आपको, इतना आसान नहीं है, वो सबको मालूम है। फिजिकली जितना स्ट्रांग रहेंगे, मेंटली जितना स्ट्रांग रहेंगे, ट्रेनिंग में प्रॉब्लम कम आएंगी ज़रूर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कम आएंगी। तो इसलिए ये 2 महीने आपको रिलैक्स करना है, इन टर्म्स ऑफ ज़्यादा अननेसेसरी नहीं घूमना है। घूमो तो ऐसा नहीं, अपने दोस्तों से, परिवार से, रिश्तेदारों से, सबसे मिलो, बट जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान रखना है, चोट नहीं खाना है। यस सर। राइट? यस सर। और अपना थोड़ा स्पोकन इंग्लिश पे फोकस करो, करंट अफेयर पे फोकस करो, बुक्स रीडिंग की आदत डाल लो। बाकी ट्रेनिंग तो आपको ठीक कर ही देगी जो भी कुछ है। अभी मैं 30th को अभी नवंबर 30th को POP है 149 कोर्स की, मैं जा रहा हूँ एनडीए। हर सेमेस्टर में मतलब मैं जाता हूँ, तो अब तुम्हारे में भी आऊँगा अगर इनवाइट करोगे तो, ठीक है ना? तो बहुत सारे स्टूडेंट भी पास आउट हो रहे हैं, उनसे मिलूँगा, और आई एम वेरी मच श्योर कि अच्छी से ट्रेनिंग करोगे और अच्छा वहाँ पे ना कुछ रैंक लेके आओगे। जो वहाँ पे टॉप में रहते हैं ना, मेडल, गोल्ड मेडल मिलते हैं, पता ही है सब कुछ ना, तो कोई ना कोई आप हासिल करो, ये हम सबकी, आप सबकी, हमारी सबके विशेष है आपको, राइट? थैंक यू वेरी मच, और अच्छे से मस्ती से अपना ट्रेनिंग करो। थैंक यू। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.